जय महाराष्ट्र, जय भवानी. Thank you, sir. Well, I find it very, I find it most disturbing. What is the matter with Ajit Dada Pawar? You're fighting an election. For God's sake, fight an election. Fight the election. Why do you have to talk the way you're talking? Let's ask Dr. Seema Malik. Dr. Seema Malik, very good evening, ma'am. गुड इवनिंग नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार. भले एक दिन के बाद सही, लेकिन रामनवमी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं. थैंक यू एंड सेम टू यू One day later. बोथ ऑफ यू एंड योर व्यूअर्स. Thank you very much, ma'am. So what is the matter with Ajit Dada Pawar? What is he doing? I mean, I don't even know where to begin. For God's sake, that's your younger sister. Why is he talking the way he's talking? I mean, you're fighting an election. Fight the election. That's it. He's making it so personal and so obscene almost. What's going on here? Dr. Malik, please. देखिए ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ इस पर ये है कि एक उनकी बौखलाहट और इम्बैलेंस हो गया है. शायद उनको पता नहीं जो भी क्या बोले, जैसे जैसे वो बातें बोल रहे हैं अबाउट रिस्पेक्टेड सुप्रियता. इनफैक्ट हमारी पार्टी में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलता था कभी भी. एंड इनफैक्ट हम लोग बोलते भी थे कि हाउ कम योर ऑल योर स्पोक्स पर्सन्स एंड ऑल योर लीडर्स दे नेवर टॉक ऑल दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. मतलब कभी भी हमें जवाब नहीं देना पड़ता था. बट अजीत दादा पवार का मुझे याद है कि एक बार उन्होंने जब सिंचाई की भी कुछ बात हुई थी तो उनका कोई स्टेटमेंट था जिसके लिए हमें हमेशा जवाब देना पड़ता था जी. किसी ने पूछा था कि सूखे के लिए क्या करना है तो उन्होंने कोई जवाब दिया था. जो हम किसी भी चैनल पे जाते थे तो सबसे पहले लोग वहीं शुरू हो जाते थे. इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस. और देखिए ये जो बातें हैं, अभी उन्होंने कुछ उनका स्टेटमेंट आया अबाउट दैट द्रौपदी वाला आल्सो जी. बट मतलब खुद आप पूरे टाइम यू वो इन महाराष्ट्र में आप ही बाहर में थे ना. जब उसके पहले भी 2.5 साल तक जब हम थे तब भी आप थे. उसके पहले भी बीजेपी रही और अभी भी आप हो. तो आप व्हाट यू वांट टू से, है ना, फीमेल फीटिसाइड पे आपने कुछ काम नहीं किया. आप ये कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे नहीं समझ में आती है बातें उनकी. बट स्टेटमेंट्स हैं उनके अबाउट द वोट, अबाउट द फंड्स गिविंग इन प्लेस. बट दिस वन मस्ट से Supriya Sule ji has maintained her dignity. Yes. She has talked with courtesy. She is a very dignified woman. Not a single bad word, nothing. She has not gotten provoked. Yes. And amazingly enough, this is what we were discussing. Hang on a minute. This is what we were discussing. Pradeep ji और हम यही बात कर रहे थे आज भी कि हमेशा उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है. Supriya Sule ji. She always answers with a smile, whatever how horrid the questions are. जी बिल्कुल. That's what I'm telling. She's very dignified and itna abhi I think maybe she's so tired also. You can see the things, the way she's working. Still she's smiling and she's not talking any nonsense about anybody. So that's why ये चीज़ें ना उनको जिताएंगे दिखेगा बहुत huge margins. This is terrible. Seema Malik ji, Supriya Sule ji revealed one thing that is very important where the elections are concerned. She said this election is going to be on a secular platform. Secularism. People are going to vote for secularism. And the same thing has been espoused by Rahul Gandhi ji. He says, प्यार और मोहब्बत के दुकान हर गली, हर गांव, हर शहर में. And he says this will defeat the नफरत की राजनीति that is prevailing across the nation. Now Supriya Sule ji quoted some surveys. She said this survey says that people are going to vote on secular forms, on secular lines. So do you think that is a massive mandate for India Alliance, Dr. Seema Malik? Yes, of course. I think like that only. And बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने. देखिए people are tired of on this जो ये इनकी जो polarizing politics है ना, that destructive politics जिसको मैं बोलूँगी, लोग अब थक गए इन चीज़ों से. They are really sick and tired of all these things. Every time कुछ ना कुछ शेख वो निकाल देना. बेस्ट सेकुलर कंट्री हमारी है और मुझे लगता है कि जरूर जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है. सेकुलरिज्म का पे ही वोटिंग होगी इस बार, आप देखिएगा, और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे. ऐसा नहीं है अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो दे आर गोइंग टू वोट ओनली फॉर राम मंदिर, ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा. बट डॉक्टर सीमा मलिक, द बीजेपी टैगलाइन है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे. सूर्य तिलक, प्राइम मिनिस्टर मोदी 500 साल के बाद सूर्य तिलक राम लल्ला के जब माथे पे फॉरहेड पे लगा, द एंटायर नेशन वाज हैप्पी, द जॉयस मोमेंट.
Prime Minister Modi said India alliance was always against Ram Lalla. आप कोर्ट में गए राम लल्ला के खिलाफ, आप राम लल्ला को टेंट में रखे. ये मोदी साहब है, मोदी जी है, 500 साल के बाद राम लल्ला के अपने रिस्पेक्टेड जगह पे वहां पर रखे, मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया. और आपको इनविटेशन देने के बावजूद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स घर पे गए इनविटेशन, बट देयर आल्सो यू हैड अ चांस टू रिडीम द सिंस, बट आप लोग ने नहीं किया. एंड दैट इटसेल्फ शोज दैट इंडिया अलायंस, गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है. डॉक्टर मलिक, देखिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है 10 साल तक, तो उनको ये सब कहना बहुत जरूरी है. और राम को कौन टेंट में रख सकता है और कौन मकान में रख सकता है और कौन उनको ला सकता है, इसको कहा जाता है अहंकार की पराकाष्ठा, जो उनके दिमाग में बैठ गया है कि वो राम को लेके आए. तो मतलब मुझे इससे क्या मैं बोलूं, मतलब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती इन चीज़ों पर देखिए एक जिसको बोलते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा मतलब अहंकार हो जाना. आप राम को लाएंगे, आप हैं कौन, मतलब कौन है आप जो आप राम को लाएंगे? तो आप उसके लिए आप राम के नाम पर वोट मिल रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है 10 साल तक, कुछ बताने के लिए है ही नहीं आपके पास. ऑल द टाइम यू आर डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन एंड नथिंग एल्स. कौन ला सकता है राम को भाई? कौन लाएगा राम को? जी दुरुस्त बात है, लेकिन आपके पास कहने को तो है. अब वो कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी प्लेन के अंदर नवरात्र के वक्त मछली खा रहे थे. भी जिसका जो मन होगा वो खाएगा. देशों में नहीं हिंदूज जो खाते हैं नवरात्रि में, ये सब बात सबको पता है. और हर कोई नवरात्रि का फास्ट नहीं रखता. खाएगा आपको क्यों, आपको इससे क्या परेशानी है? कौन क्या खाएगा? और हर कोई नवरात्रि का फास्ट नहीं रखता है, नहीं रखता है, मतलब नहीं रखते, बहुत से लोग नहीं रखते. So why are we talking about this? I mean, what have we reduced ourselves to? That's what I want to know. क्या हो क्या गया हम लोगों को? सनातन और समथिंग. बहुत धार्मिक हिंदू भी होते हैं जो मैंने देखा है कि नहीं रखते फास्ट. बहुत लोग नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, या उनके यहाँ नहीं होता है. देयर सम पीपल हु बिलीव इन आर्य समाज एंड दिस थिंग्स. तो ठीक है, सबका अपना अपना बिलीफ है उसमें. क्यों व्हाई द गवर्नमेंट वांट्स टू इंटरफेयर इन देयर क्लोथ्स एंड देयर eating habits and all this thing? But that's what's coming, really don't understand. But that's what people are warning about, isn't it, Dr. Seema Malik? इसी के बारे में तो लोग चेतावनी दे रहे हैं ना कि अभी अगर ये तीसरा टर्म आ गया तो आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे चलेंगे, किधर देखेंगे. एक एक चीज में हर जगह पर हस्तक्षेप होगा सरकार का. होगा सर, जब ऐसे लोग आते हैं तो जरूर होगा. और मैं आपको बताऊं, मैं आई हैव वर्कड इन ईरान. जब खुमैनी आए थे उस समय मैं वहाँ पर थी, तो उन्होंने धीमे धीमे ऐसे वहाँ पर शुरू हुआ था. वी वर द फॉरेन डॉक्टर्स. फर्स्ट दे स्टार्टेड देयर ओन वुमेन दैट यू वियर अ हिजाब एंड ऑल दैट. देन दे आस्क्ड अस आल्सो दैट आप लोग कुछ स्कार्फ पहन के आओ या कुछ ऐसे. तो धीमे धीमे ये चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं. आई हैव सीन, और आज तक भी वो लोग देखिए अब वो चीज़ें हैं वहाँ पर. तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, पर ये चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं. और इसलिए सबको डर है कि आप खाने पीने पे, लोगों की ड्रेस पे आप इतना वो कर रहे हो तो किसको डर नहीं होगा. You know, but Dr. Seema Malik, Prime Minister Modi was trying to justify. He said when the Mughals attacked India, they not only defeated, but they attacked the Astha Sthal. Astha Sthal को डिस्ट्रॉय किया, यानी हमारे मंदिरों को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया ताकि हमारे आस्था को पहुंचाए ठेस. और आज भी वही जो गठबंधन गठबंधन है वो हमारे आस्था स्थल पर अटैक कर रहे हैं. हमारे आस्था स्थल है कि ये महीने में कुछ नहीं, मगर आप खाते हैं उसका वीडियो निकालकर उसी महीने में उसका प्रचार करते हैं. यू आर ट्राइंग टू हर्ट द सेंटिमेंट्स, द आस्था स्थल. नो, दैट वाज एन एग्जांपल. इज इट कन्विंसिंग व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्स लाइक दैट? नॉट एट ऑल कन्विंसिंग सर. एंड बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस देश में. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएम उन पे बोले ना कि कौन क्या खा रहा है और क्या उनका पहन रहा है. एंड मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए वो वीडियो बनाया होगा. समटाइम्स वी ऑल्सो मेक सो मेनी वीडियोज़. घर में हम आप सभी बनाते रहते हैं. तो अगर किसी को उन्हें नहीं पता हुआ किस तरह से वो उसको वायरल करके और इस तरह की कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी है जो लोग हैं वो इनकी बातों में इसमें आ जाएंगे. मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है. सब हमको यही बोल रहा है कि हम आस्था पे अटैक कर रहे हैं. हम क्यों, हमारी आस्था नहीं है. वही है केवल एक राम को मानने वाले, वही केवल पूजा करते हैं. हम लोग पूजा नहीं करते. बट ऑफकोर्स हम बाहर आके दिखा के पूजा नहीं करते. बस दिस इज द डिफरेंस. You know, Dr. Seema Malik, another thing that Supriya Sule ji highlighted was, you got problems on the entire nation today. Unemployment is a problem, women issues is a problem, price rise is a big problem, inflation is a big problem, and the farmers issues are the big problem the entire nation is facing.
And she said we need to do something about that, and she's given innumerable examples how people are suffering. The kisan hai, woman hai, जो बच्चे हैं जो बाहर निकल रहे हैं from the campuses, जो guaranteed payments है उनको नहीं मिल रहे. It shows how the scarce the job market is. This is all true facts that she displayed. She talked about it. At the same time, but Ajit Pawar says nothing has happened in 15 years in Baramati. बारामती में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई किधर काम नहीं हुआ. Now, how is this? You have Supriya ji. How are you going to justify what she's saying and Ajit Pawar's statement on that? Who can, I think, कौन उनके स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर सकता है? मतलब कुछ तुक ही नहीं है ना. कभी तो कहते बारामती में इतना हुआ है, अभी वो कह रहे बारामती में कुछ काम ही नहीं हुआ है. खुद बारामती से, और वो खुद एमएलए थे बारामती कर रहे हैं. मतलब अब इसको, मतलब किसी कोई और होता है तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह देती, कुछ भी कह सकती हूँ मैं इसमें, पर मैं कहना नहीं चाहती. शायद थोड़ा इम्बैलेंस हो गया उनका, और मैं क्या बोलूं. और खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे वहां से एक टर्म के लिए खुद रहे हैं. खुद इतने दिन से बोल रहे हैं. अभी तो कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो वो बोलते कि हमने कराया. अभी तो वो कह रहे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, खुद अपनी ही चीजों. तो खुद क्या कर रहे थे? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, खुद क्या कर रहे थे? अब वो ऐसे बोल रहे हैं कुछ भी. मतलब नहीं होता है ना, अगर आप किसी दूसरी विचारधारा के साथ चले जाओगे. He seems to be under a lot of pressure. You don't know what you are speaking. आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. शायद अब अगर मैं भी अगर जाके बैठ जाऊं उधर तो मुझे तो शायद बहुत ज्यादा परेशानी होगी कि मतलब मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. और मुझे भी बैठ के ही बोलना है कि हमने टॉयलेट बनाया है. तो कई बार लोग बोलते भी रहते हैं कि दिस मतलब एवरीबडी गेट्स ऑल दिस थिंग्स. और ये शायद यही होता है कि दूसरी विचार, जहाँ आपकी विचारधारा नहीं मिलती, अगर आप किसी ऐसी पार्टी के साथ चले जाओगे तो आप ऐसे कंफ्यूज रहोगे हमेशा. क्या आप बोल रहे हो? बड़े मेरे सीनियर लीडर हैं, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती. सीनियर लीडर थे मैम के हैं, थे के हैं, ठीक समझिए. अभी तो थे ही मैं. So are you planning to move? Are you also planning to go there? आप भी जाने वाली हो उधर अजीत दादा की तरफ? मैं जी आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने बात छेड़ी है. अगर आपके साथ डिबेट करें, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ? क्योंकि मैं आपको बताऊँ ऐसा है, कभी चली जाती सर. क्योंकि ऐसा है कि तब भी जा सकती थी कि कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन जो थे महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ आए यहीं पर बात करने के लिए. और अगले दिन आई फाइंड ही हैज जॉइंड मिस्टर एकनाथ शिंदे. मैं कहा यार ये क्या हो गया? वो तो कुछ भी हो रहा है सर, वो तो है ही है. वो तो कुछ भी हो रहा है तो मतलब. पर मैं आपके साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है मैम? साथ डिबेट कर चुकी हूँ, तो आपको ऐसा लगता है? लेकिन मैम बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? अभी हमारे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि दो एनसीपी हैं, दो शिवसेना है. एक्चुअली शिवसेना 3 है, 2 शिवसेना और एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तीसरी वो भी आ गई. और कांग्रेस का कौन कहां पर है, कब जा रहा है, किधर जाएगा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा. महाराष्ट्र हैज बिकम वेरी कंफ्यूजिंग मैम. महाराष्ट्र नहीं सर, पूरे कंट्री में यही हाल है. People are joining them and under what pressure we don't know. But the political observers feel that not only has the BJP destroyed Pawar Saab's party, he broke the party, the BJP broke the party, BJP broke the family. BJP broke the family, दोनों को अलग अलग कर दिया. And the political observers believe that BJP has confined Sharad Pawar Saab to Baramati, where Pawar Saab used to always be proud of the very fact that मैंने इतना काम किया और बारामती में इलेक्शन के वक्त में बारामती में रहता नहीं है, because वहाँ के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, चाहते हैं. But the BJP and its allies have take pride in the very fact they have confined Pawar Saab, Sharad Pawar Saab to Baramati. Supriya Sule ji said no, Pawar Saab is touring the entire nation and Maharashtra. How do you see that, Dr. Malik? क्या मतलब आई डोंट नो क्या पारा, मुझे ठीक से समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन. नहीं, तो सवाल ये मैडम, सवाल ये है कि सुप्रिया ताई कह रही हैं कि शरद पवार जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बारामती पर ही केंद्रित नहीं है. वो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं कैंपेन के लिए. लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है और एनसीपी अजीत दादा पवार कहती है हम लोगों ने बांध के रख दिया शरद पवार को बारामती में. पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको खुद को लोगों के पास जाना पड़ रहा है. He can't go out of Baramati. हमने confine करके रखा है उनको. ऐसा कह रहे हैं? ऐसा नहीं है सर. बहुत बार तो हमने कई बार दिल्ली में भी देखा है इस बीच में उनको. ऐसा नहीं है. अभी भी थोड़े दिन पहले वो दिल्ली में थे, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर बंद के रह गए हैं. पर ऑफ कोर्स when the जरूरत है तो वो कर रहे हैं. अभी
वो बताना भी जरूरी है ना लोगों को, एक जो एक फेक नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं सब जगह, तो जरा बताना भी जरूरी है लोगों को। तो शी इज गिविंग सम टाइम इन बारामती, दैट्स वेरी गुड। एंड बारामती का जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, ही इज द ओनली वन हु इज यू नो, बारामती जो में उन्होंने किया है, चाहे जो भी लोग वहाँ पर आकर कोई भी क्लेम कर रहे हैं, देखिए आप किस तरह से But Ajit Dada Pawar may be absolutely right because that's what Sharad Pawar साहब said. Just the other day, पिछले हफ्ते बारामती में एक मीटिंग वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये लोग, डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि इन्होंने नहीं करी है, मैंने करी है, मैंने करी है, इन्होंने नहीं करी है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी कभी कहते हैं मैंने करी है, कभी कहते हैं डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, पता नहीं। नहीं, वो शरद पवार साहब बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है मतलब खुद ही शरद पवार साहब कह रहे हैं कि अजीत दादा ठीक बोल रहा है कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि उसने नहीं करी है, सारी हम लोगों ने करी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही ना, इसलिए शायद उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। But what I'm saying is what happens afterwards, because let's suppose the way things are going on at the moment, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही हैं, शरद पवार साहब, सुप्रिया ताई और बाकी जो आपके जितने कैंडिडेट्स हैं, 10 सीटों पे आप खड़े हो रहे हैं, परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। शरद पवार की जो एनसीपी है जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है। एटलीस्ट दिस आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग टू विन। अभी इस स्टेज पे जी बिल्कुल, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकती हूँ कि 70% सीट्स हम लोग जीतेंगे जी। तो इनका क्या होगा उसके बाद? अजीत दादा क्या करेंगे? पर मैं अभी कह सकती हूँ बात। तो मैम ये बताएं, अजीत दादा पवार क्या करेंगे उसके बाद? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए ना, उनके प्रवक्ता आते हैं ना आपके पास, उनसे पूछिए। वो सभी लोग कह रहे हैं, देखिए मैं आपको जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो बहुत ज्यादा जिनको हम सोचते हैं कि दे आर द बायस्ड मीडिया एंड ऑल, वो भी बोल रहे हैं कि इनकी कोई भी सीट नहीं आ रही है जी। अजीत दादा बारामती की भी सीट जा रही है शायद, बारामती की 100% जा रही है सर जी। सुप्रिया ताई इज गोइंग टू विन जी, कोई डाउट नहीं है उसमें, और बिल्कुल भी डाउट मत करिए आप लोग। You know, Dr. Seema Malik ji, Rahul Gandhi ji today highlighted a very, very serious example he gave, which highlighted the height of unemployment. He said, जब मैं रेलवे स्टेशन में गया, I found a porter, a coolie who was a civil engineer. When I talked to him, the civil engineer told me that he paid huge amounts to a private college, studied and became a civil engineer. And now, because there's no jobs, he's doing the job of a coolie. He's carrying bags of people in the railway station. Rahul Gandhi said, this is not India that I want to, this is not my India, this is not Congress's India, this is not India Alliance's India. Prime Minister Modi has created a darar between the job market and the Indian youth. So, how do you describe the statement? It's a classic example of unemployment. Yes, it is. Yes, it is. And unemployment is there. People are, I've seen, उन्होंने खुद ही बोला है, I've seen very educated people, drivers हैं, जिनसे कि मैं इवन आई हैव सम ड्राइवर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग करा हुआ है, एंड आपको समटाइम्स दे कम एंड दे ओपन द डोर ऑफ योर कार, तो आपको शायद शर्म आती है कि आप इतने पढ़े लिखे, ऐसे नहीं भाई ये सब मत करो, यू फील यू नो दिस थिंग कि इतना पढ़ा लिखा आदमी आके आपकी कार का दरवाज़ा खोल रहा है, तो ये तो है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये है, लोग ड्राइवर्स बहुत एजुकेटेड लोग जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे हैं एंड कुली का वो जो कह रहे हैं, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल हैं। पर ये बात है कि ये गवर्नमेंट इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि हम रोड्स बना रहे हैं, तो अब कितना एक पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर जाके अब वहाँ पे पत्थर तोड़ेगा, तो मैं नहीं कहती कि कुछ बात ही नहीं है, फिर तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। So many times we are fighting, sitting on the television, जैसे उन्होंने तो सब आंकड़े निकाल रखे हैं, वो कहते हैं 3.1%। अबाउट महंगाई की बात करिए तो वो कहते हैं बहुत कम हो गई है महंगाई की दर, इट इज ओनली 4.88 और समथिंग। बट अभी आप देखिए, अगर आप बाजार जाते तो आपको दिखाई पड़ता है ना कि क्या है, आज 20 रुपए किलो का आटा 40 रुपए किलो हो चुका है। तेल आप देखिए, आज सरसों का तेल इज 200 रुपीज, ऑल द पल्सेस आप देखिए उनके प्राइस कहाँ पर है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए और लोगों के लिए नहीं होगा, बट द कॉमन मैन हु गोज टू द मार्केट विद 500 रुपीज अ नोट इन हिज हैंड, वो क्या खरीद सकते हैं वहाँ पर जाके? तो ये आंकड़े तो कोई खाएगा नहीं इनके। आप हर चीज के आंकड़े आ चुके हैं, आप देखिए अभी तो 25,000 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं, बट उसका भी एनालिसिस देखिए कितना हुआ ही है ना। यू जस्ट सी है ना, जहाँ पर उन्होंने मल्टी डायमेंशनल ये जो इंडेक्स है उसको कैसे उन्होंने मैनिपुलेट करा है, हाउ द नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने चेंज कर दिया है, एंड किस तरह से उन्होंने उसमें और क्राइटेरियाज करके उन्होंने बोल दिया हमने तो इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए।
तो कुछ भी हो तो अपने उनके आप यू सी डेटास यू कैन नॉट मतलब यू विल हैव But टू do you डू think गो these ऑन issues फाइटिंग will विद work, दैट. ma'am? These issues will have a lot of traction with people, do you think? Or will people vote only on Ram Mandir and They will not national decide. They will security not. and, हम देखिए ईवीएम का भी कुछ and hitting out at Pakistan and stuff like that? Do you think? नो दे विल नॉट. शायद उनको सबको समझ में आ चुकी है बात. 2019 में पुलवामा था, ये बात सब लोग जानते हैं. जो वो अपने देते रहते हैं कि हम इतनी बार जीत गए, इतनी बार जीत गए. शायद तब भी नहीं जीतते वो लोग. और मुझे नहीं लगता अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो, आई डोंट नो, बिकॉज एवरीबॉडी इज सो दिस थिंग अबाउट देम. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो दे विल वोट फॉर द राम मंदिर एंड ये. ठीक है, सबकी आस्था है और आपको ये सब बातें करके जी. Rahul Gandhi ji today talked about the EVMs. He said, Raja ki atma EVM mein hai. That's what he said. He still doubts that some things might happen where EVMs are concerned. He says, we have already put a suggestion that VVPAT को voters को दीजिए. After he presses the button, let this receipt come to the voter and let the voter go and put it in a separate box and then have 100% counting of the VVPAT receipts. That is what Rahul Gandhi is saying. So do you still fear that EVMs are going to play a big role and either the Supreme Court interferes or the Election Commission on its own? How do you see Dr. Seema Malik? बिल्कुल है सर, वो तो सबको ही है. बट ये है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है. एंड आप देखिए क्या क्या चीज़ें ईवीएम के बारे में बात करो तो हज़ारों चीज़ें हैं. आज भी आई थिंक दे हैव गॉट अ लॉन्ग डिस्कशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड जो भी देखिए अब क्या उसका रिजल्ट होता है. एंड वीवीपैट तो बिल्कुल क्यों नहीं 100% होने चाहिए. दिस इज नॉट द ओनली वन मशीन. देयर 3 मशीनें हैं, उसमें सबको पता है कि देयर इज अ कंट्रोल यूनिट एंड द वीवीपैट यूनिट. एंड जहाँ पर आपको 7 सेकंड्स के लिए ओनली यू कैन सी कि आपने किसको वोट दिया है. और आप देखिए केरला का भी अभी एलडीएफ एंड यूडीएफ दोनों ने ये बोला है ना ये चीज़ें कि जो अबाउट दैट मॉब ड्रिल जो हुआ है वहाँ पर, कि उसमें कुछ मशीन ऐसे निकली हैं कि जिसमें नहीं आई थिंक जिसमें कि आप जब भी बटन दबाइए तो 2 बीजेपी के ऊपर वोट्स जा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें तो हैं. और किसको हमें तो पूरा डाउट है सर. हम तो चाहते हैं कि वीवीपैट रखे जाएँ और चलो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ संज्ञान ले रहा है उसका, तो बहुत आई थिंक वी शुड होपिंग समथिंग कुछ होना चाहिए. तो देखिए क्या होता है. Right. Thank you so much, ma'am. इतनी सारी ईवीएम्स गायब भी हैं. Great pleasure talking to you, ma'am. Thank you very much. Same here. Great pleasure talking to you. All the very best. And namaskar to you. Thank you. Well, you think Seema Malik ji is going to stay with Sharad Pawar? Yeah, the I total think so. loyal, Supriya Sule ji के total loyalist members है sir. Right. The report that we have got, कुछ भी हो जाए, they will be totally with Supriya Sule ji. Wonderful. That is really and truly wonderful. But the fact remains that Mr. Sharad Pawar is going to be doing rather well. He's actually fighting hard, and quite a few people are going back towards him. And Mr. Ajit Dada Pawar's language reflects the kind of tension he's in. At least that's what I think. Otherwise, why should he say what he's trying to say? I mean, why should he say all that? वो क्या वो सास और बहू का एग्जाम्पल देना और ये देना क्या है? Yes. पवार साहब को चांस दिया, मुझे चांस दिया, सुप्रिया सुले जी को चांस दिया. अब सून का वक्त है. In Marathi, she said, it is the daughter-in-law's turn now, and you are going to vote for a change. You're going to vote for the daughter-in-law. She is the Pawar. कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हो, कोई जीते हारे, जीतेगा पवारी. कहने का मतलब ये हुआ. वो भी है. In the longer context, whoever wins is the Pawar. That's right. मतलब पश्चिम महाराष्ट्र पवार का ही होगा. मतलब बाकी सबका क्या? बाकी किसी का तो सवाल ही नहीं है. मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि बाकी जितने भी लोग हैं जो हम लोग बात कर रहे थे, जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ से कोई नया शख्स तो आ ही नहीं सकता. सर पूरे पश्चिम महाराष्ट्र आप देखोगे, एक कोई छत्रपति है, कोई अलग अलग है, कोई रॉयल फैमिली है, कोई पेशवा है, नायक पालकर है, और दूसरा मोहिते पाटिल जी का किसी को टिकट नहीं दिया तो दूसरे पार्टी में चले गए. तो घूम फिर के ये शाही खानदान ही पूरे पश्चिम महाराष्ट्र और अलग अलग प्लेसेस. Only the rich and mighty are actually controlling all these things. All the feudal lords and all the rich people are still there. Totally. And they still control Maharashtra. And they dominate. And they dominate the entire politics of the belt. And they dominate the politics of this area and several other areas in the country.
And we thought Mr. Modi had united just about everyone. I mean, मोदी जी इज अ क्लासिक एग्जांपल से गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है जी। बट जो अगल बगल पूरे सिस्टम है that उसको gives कैसे us hope. उखाड़ के उसको निकालने के लिए जमाना लगेगा That gives us hope. Right, and at the moment with us, from the